Thank you, Jesus. Obadiah, destruction of Edom for their pride, and wrong unto Jacob in his distress, salvation and victories of Jacob. First verse से पढ़ेंगे. The vision of Obadiah. Thus said the Lord God concerning Edom. We have heard a rumor from the Lord, and an ambassador is sent among the heathen. Arise, yea, and let us rise up against her in battle. Behold, I have made thee small among the heathen. Thou art greatly despised. The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, Who shall bring me down to the ground? Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. If thieves came to thee, if robbers by night, how art thou cut off? Would they not have stolen till they had enough? If the grape gatherers came to thee, would they not leave some grapes? How are the things of Esau searched out? How are his hidden things sought up? All the men of thy confederacy have brought thee even to the border. The men that were at peace with thee have deceived thee and prevailed against thee. They that eat thy bread have laid a wound under thee. There is none understanding in him. Shall I not in that day, saith the Lord, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau? And thy mighty men, O Teman, shall be dismayed to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter. For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and thou shalt be cut off forever. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger, neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction, neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress. Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity. Yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape, neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. For the day of the Lord is near upon all the heathen. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually. Yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them and devour them. And there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord hath spoken it. And they of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain the Philistines, and they shall possess the fields of Ephraim. And the
fields of Samaria and Benjamin shall possess Gilead, and the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath, and the captivity of Jerusalem, which is in the Sepharad, shall possess the cities of the south, and saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. हिंदी में पढ़ेंगे हम ओबद्या के भविष्यवाणी की पुस्तक। Ribian ze ial raha, et Gorian ze kial ra, led Orian se, zek teri aso ore। ओबद्या पहले अध्याय, एक ही अध्याय है इसके अंदर, हम पहले वचन से पढ़ेंगे। एदोम को दंड। ओबद्या का दर्शन एदोम के विषय यहोवा यों कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगन के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? यदि दाख की ताड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूट गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा? हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। एदोम को दंड का कारण। 10 वचन से आगे। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए, और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में, उसकी ओर देखता रहता, और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता, और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। 15 वचन से आगे। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है, वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी, और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। इस्राएल की विजय। 17 वचन से आगे।
परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। 19 वचन से आगे, दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे और यहूदी अप्रेम और समरिया के दिहात को अपने भाग में कर लेंगे और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपारात में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारे अंदर ऐसा समय दे खुदा परमेश्वर कि हम तेरे वचन समझ पाए और खुदा परमेश्वर तेरे वचन की गहरी बात को हमारे इंस्ट्रक्शंस के लिए पिता हम इस्तेमाल कर पाए। हमारे पिता सूचनाओं के लिए हम उसको यूज़ कर पाए, उपयोग कर पाए। हमारी मदद करो, हमें फिट एंड फिक्स करो, इन वचनों के अधीन करो और पिता परमेश्वर के ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 2 chapter 11 verse John 21 chapter 1 verse 12 verse, 2 Chronicles 30 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 1 वचन से 12 वचन और दूसरे इतिहास की पुस्तक 30 अध्याय। हमने फैसला किया है अकेले में बैठकर इन वचनों को पढ़ने का। अब अकेले में बैठने का फ़ायदा यह रहेगा, हमारे लिए मकसद है कि हम व्यक्तिगत रूप में सीखना चाहते हैं, हमारे दोष, हमारे गलतियां हम सामना करना चाहते हैं ताकि हम अभ्यास कर सकें और हमारे चाल चलन और हमारा उठना बैठना बोलना चलना सुधर जाए और परमेश्वर के राज्य के अनुसार और परमेश्वर के लिए लाभदायी बने। ये हमारा मकसद है। इसकी वजह से हम अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में ये 2 साल का बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने तरीके से बाइबल रीडिंग करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। निश्चित आपको फ्रीडम है, आप अपने मन से जैसा चाहिए वैसा इसे रीड कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, निश्चित है कि हम सब के लिए वह एकमात्र आत्मा है हमारी सहायता करने के लिए। हम सबको पवित्र आत्मा का लाभ मिले और निश्चित हमने उसके लाभ लेना है इस बाइबल स्टडी में और ये बाइबल रीडिंग में। और प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पिता पवित्र आत्मा, हम विनती करते हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आइए, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए और डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।